Welcome back, viewers. Now, the NEET undergraduation 2026 paper leak controversy has triggered a nationwide political storm. Allegations suggest an organized network involving exam handlers, intermediaries, and coaching-linked agents behind the breach. Investigators are probing how the question paper was accessed and circulated before the exam through suspected digital and offline channels. The National Testing Agency is under scrutiny over alleged security lapses and system weaknesses. The center is facing pressure as demands grow for strict action and reforms in the examination system. Let's take a closer look at who the key players named so far are. We now move across to our plasma screens. Firstly, the arrest of Rakesh Mandavaria from Sikar was reported. What's his role? He boasted more than 120 questions from his guest paper were in the exam. Sikar-based paper solver and consultant Rakesh Mandavaria has been arrested, one of the key players of this organized network that we are talking about. Let's move on to who else has been accused in the NEET paper leak case. Moving on. There's Manish Yadav. He's also been arrested in Rajasthan at Jaipur. He was circulating the question bank that matched the actual paper. Manish Yadav arrested in Jaipur. Moving on, there's also Shubham Khairnar arrested in Maharashtra in Nashik. He's a Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery student. He purchased a physical guest paper for rupees 10 lakh. Sold guest paper to a buyer in Haryana for 15 lakh, making a profit there. Another arrest from Maharashtra, this one in Pune. Manisha Wagmare was arrested. She helped students establish contacts with paper leak racket. So as of now, like we're telling you, viewers, arrests in Jaipur and Maharashtra in Pune and Nashik. Another arrest was in Jaipur of Avinash Lambe. He was alleged mastermind behind circulation network of the leaked paper. Dhananjay Lokhande also arrested in Ahilya Nagar. He supplied the leaked question paper to Shubham Khairnar. Let's go across now to my colleague Javed Hussain, who's also joining us on this. Javed, पता चल रहा है हमें कैसे एक organized network है जो सामने आ रहा है. अभी तक जो लोगों को अरेस्ट किया गया है वो महाराष्ट्र और राजस्थान से ही हुए हैं. जयपुर से हुए हैं, नासिक से हुए हैं, पुणे से हुए, अहिल्या नगर से अरेस्ट करे गए हैं. क्या कल्यूजन था इन लोगों के बीच में, क्या लिंक था, इस नेक्सस के बारे में क्या कुछ जानकारी है हमारे पास? देखिए, नीट यूजी एग्ज़ाम का जिस तरीके से पेपर लीक मामले में जो एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है, भारत सरकार से इस बारे में पहले बातचीत की गई, शिक्षा मंत्री को बताया गया, उसका इस पेपर को कैंसिल करने का फैसला लिया गया एनईटी की तरफ से, यानी कि नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है. इस पूरे मामले में लगातार प्रदर्शन भी जारी है. एनटीए के दफ्तर के बाहर भी आज प्रदर्शन हुआ. वहीं इसमें दूसरी तरफ गिरफ्तारी भी, लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं. हम आपको बता दें कि पूरा जो एक कनेक्शन है नासिक से लेके हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, और अब जो जानकारी मिली कि पुणे से भी गिरफ्तारी हुई है. वहाँ पे भी इस पेपर लीक मामले से जुड़े कुछ जो सस्पेक्ट है वो पाए गए हैं. सीबीआई की आज टीम जो है दोपहर के वक्त जो है एनटीए के दफ्तर पहुंची थी. वहाँ दफ्तर में पहुंचने के बाद वहाँ के तमाम जो स्टाफ है और जो जिस तरीके से इस पूरे पेपर को एनटीए कंडक्ट कराती है उससे उनसे जुड़े हुए लोगों से उन्होंने पूछताछ की थी और तमाम उस डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया था. क्योंकि कल जो डीजी एनटीए उन्होंने बताया था कि किस तरीके से
जो पीडीएफ के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सिमिलर पाए गए थे और उस पीडीएफ जो है वो पूरा पीडीएफ लीक नहीं हुआ था, लेकिन उसके क्वेश्चंस कैसे वहां तक पहुंचे उसको लेकर जो है एक इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा जो सवाल उठ रहा है एनटीए पर, और जिसको लेकर आज एबीवीपी और कल एनएसयूआई ने भी प्रोटेस्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई वहां से एनटीए के दफ्तर से तमाम उन डॉक्यूमेंट्स को भी ले रही है और साथ ही राजस्थान की जब एसओजी जो कि सीबीआई से पहले हैंड ओवर केस लेने से पहले जब जो एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उन्होंने तकरीबन 24 जो छात्र जो उस वक्त डिटेन थे उनकी एक पूरी लिस्ट और सीबीआई को उन्होंने हैंडओवर किया है जो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट के रडार पे है। और इसके अलावा 150 वैसे छात्र हैं, उनके पेरेंट्स, उनके दोस्त, मिडिलमैन, ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं एनईटी के नीट के इस पेपर लीक में इनको पूरी तरीके से एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा नासिक से ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सीधा हरियाणा के उस एक शख्स के साथ पास पहुंचता है और उसके बाद वो जो क्वेश्चन पेपर है वो सीधा फिर आपको राजस्थान पहुंचता है। लेकिन इसके बीच उत्तर प्रदेश की बात करें और अगर हम उत्तराखंड की बात करें या साथ ही अगर हम बिहार और झारखंड की बात करें तो सीबीआई सूत्रों का यह कहना है कि ये जो जांच है ये कई स्टेट तक पहुंच सकता है, क्योंकि साल 2024 और 25 में जिस तरीके से नीट के पेपर का लीक का मामला सामने आया था, क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था उसमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेकर इस पेपर तक भेजने वाले बैंक एम्प्लॉई और साथ ही जो अगर हम इसकी लापरवाही देखें तो पिछले साल 2024 और 25 में जिस तरीके से नीट के पेपर को एक स्टील के ट्रंक पे भेजा गया था, उसका लॉक टूटा हुआ था, पूरा कोडिंग सिस्टम होता है, इसमें कोड होता है, पेपर्स का कोड अलग होता है और जब इसको जब हम बैंक के जरिए जब ये क्वेश्चंस पहुंचता है एग्जामिनेशन सेंटर तक इसका कोड अलग होता है। लेकिन उस वक्त ये पेपर पूरी तरीके से लीक हो चुका था। ठीक उसी पैटर्न पे सीबीआई एक बार फिर से इस केस को जब सीबीआई को हैंडओवर किया गया ये नीट पेपर लीक मामले को, तो सीबीआई उसी पैटर्न पर और पुराने लोग जो इस वक्त जेल में बंद है, जो जानकारी मिली कि उनसे भी इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है कि मुंबई, नासिक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें या फिर हम राजस्थान की बात करें, कहां पे कौन सा नेक्सस, कौन सा मिडिलमैन अब इस वक्त एक्टिव है और कैसे इसको फिर से दोबारा से जो है ये पेपर लीक मामला सामने है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, इस साल करीब 22 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं वो नीट के एग्जाम में बैठने वाले थे, एग्जाम देने वाले थे। एक स्टूडेंट जो है बहुत मेहनत से जो है एक लंबे हार्ड वर्क के बाद वो एग्जाम में बैठता है, लेकिन जिस तरीके से अब एनईटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि वो इस पूरे मामले में जो सेंटर है वो चेंज नहीं करेंगे और जो एग्जामिनेशन के वक्त जो पेपर जो कॉस्ट होता है, जो इसके लिए एग्जामिनेशन जो इनरोलमेंट के लिए पैसे जमा होते हैं वो वापस करेगा और इसकी में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा। लेकिन महज सिर्फ इससे जो एक छात्र है, जो स्टूडेंट है, जो इसके लिए मेहनत करता है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका एक साल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बर्बाद हो रहा है। अब जिस तरह से नीट का एक जो पूरा नेक्सस फैला, इसमें कई मिडिलमैन, कई कोचिंग, कई वैसे जो प्रॉक्सी जो कैंडिडेट बैठते हैं इस एग्जाम में उनको भी रडार पे लिया गया। और हम आपको बता दें कि सीबीआई सोर्सेज के हवाले से इस वक्त ये खबर है कि सीबीआई थोड़ी देर में नीट पेपर से जुड़े मामलों में कुछ ऑफिशियली जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है। यानी कि सीबीआई आज जो सीबीआई की 5 लोगों की जो टीम है जो एनटीए के दफ्तर यानी कि ओखला इंडस्ट्री थाने इलाके में जो एनटीए का दफ्तर पड़ता है, जो हेडक्वार्टर है जहां पे एनएसयूआई और एबीवीपी का प्रदर्शन हुआ था इस पूरे मामले में, वहां पर सीबीआई की टीम आज पहुंची है और वहां से कई ऐसे दस्तावेज और इस पेपर से जुड़े पीडीएफ को लेकर भी इंफॉर्मेशन हासिल किया है। क्योंकि देखिए ये जो पेपर्स, जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, कहां प्रिंट किया गया, किसके किसके पास इसकी इंफॉर्मेशन थी। क्योंकि कल जो है अगर मंगलवार की बात करें तो डीजी एनटीए ने अभिषेक सिंह ने मीडिया के सामने आके कहा था कि लापरवाही हुई है और ये माना जा रहा है, लेकिन इसमें जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और छात्रों को किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर जो एग्जाम नेशन का जो डेट, एग्जामिनेशन का डेट है वो जल्द से जल्द जो है जारी किया जाएगा। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी बात यह कि जो एग्जामिनेशन होना है इसमें जो रजिस्ट्रेशन होना है, सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो कई लोग शहर से दूर गांव से उस सेंटर तक आते हैं, उसको कौन इसको पूरी तरीके से कंपनसेट करेगा। क्योंकि एग्जाम और दूसरी बात कि इसमें जो मिडिल मैन है, जो कोचिंग है और जो इन छात्रों तक जो बड़े जो पैसे इसमें 10 लाख 20 लाख जिस तरह से पैसों की रकम चलती है इस पेपर में, नीट के पेपर में, अपने में कॉन्फिडेंशियल पेपर होता है, बहुत ही बड़ा एग्जाम है और ऐसे में इस तरह से पेपर लीक होना एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं एनटीए पे सवाल उठा रहा है। और सीबीआई एनटीए से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं उनके दफ्तर में उनसे भी जो है इस मामले